हेलो स्टूडेंट, हेमंत सरीज हियर। सो आज हम एक्चुअल में रे डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं, इसीलिए हम पेन और कॉपी का यूज़ कर रहे हैं। ओके, आज हम बोर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द कॉन्केव mirror when objects are kept in front of the concave mirror at different position. Okay, so first we have to draw the concave mirror. So first condition we will say when object is placed at infinite distance in front of concave mirror. ओके, सो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। ओके, सो फॉर दैट वी हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम. सो वी हैव टू ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस फर्स्ट. So this is the principal axis and object is placed in here. Okay, so its convex side is painted by the reflective surface and concave side act as a reflecting surface. Okay, so this is the pole. ये क्या हो गया? पोल हो गया. This is the focus. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ का डबल दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस देन, अब देखो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द रूल्स. व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द इनफाइनाइट डिस्टेंस दे ऑलवेज इंसिडेंट ऑन मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. दैट मीन्स लाइट रेज कैसे आएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, लाइक दिस. Okay, so we are drawing two rays that are coming from the infinite distance. So ये क्या actual में? They are incident ray. ये क्या है? Incident ray. And incident ray are parallel to the principal axis. So according to the rule of reflection, क्या होगा? After reflection, this light rays will passes from the point on principal axis, that is focus. So after reflection, light rays कहाँ से जाएगी? फोकस से होते हुए जाएगी. सो वी हैव टू ड्रॉ द लाइट रेज फ्रॉम हियर. ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज. ओके, सो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर. सो देखो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है? एट द फोकस. दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ बनेगा? ऑब्जेक्ट का इमेज है कहाँ बनेगा? फोकस पर. ओके, सो कंक्लूजन क्या हो जाएगा? कंक्लूजन दैट इज आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस देन image will form at focus, or we can say principal focus also. Okay, so this is the diagram or ray diagram for object is at infinite distance. Okay, now we will see the second condition. अब second condition में क्या होगी? This is the infinite distance. Now we will place object between infinite distance and center of curvature. That will be our next condition. What will be next condition? When object is placed, और हम kept भी लिख सकते. ओके, when object is placed or kept between infinite distance and center of curvature. C is center of curvature and this sign represents the infinite distance. Okay, then image कहाँ form होगा? So for that we have to draw the ray diagram. So again we have to draw the principal axis. So this is our principal axis and this is the mirror. Okay, in mirror convex side is painted with the reflecting paint and concave side act as a reflecting surface. Again this is pole, this is
focus, double of focus is center of curvature, and this is infinite distance. Okay, this is infinite distance. So where object is placed? Object is placed between infinite distance and center of curvature. So we are placing object over here. Okay, so we will draw one light ray parallel to the principal axis. This is the light ray which is parallel to principal axis. So after reflection, see, this is the object called AB. ऑब्जेक्ट को हमने नाम दे दिया AB. ये ऑब्जेक्ट का टॉप हो गया और ये उसका बॉटम हो गया. अब वन लाइट रे इज कमिंग टू आवर इंसिडेंट ओवर मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. दैट मीन्स आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू द फोकस. सो इसको हमने फोकस से ड्रॉ कर दिया लाइक दिस. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ light ray. This is incident ray and this is reflected ray. And one more ray we will draw from the center of curvature. Center of curvature. So we know when the third rule क्या है? When light ray is incident through mirror when light ray is incident on mirror through center of curvature, it returns back or reflect back from the same path. मीन्स यहाँ से आई और यहीं से वो रिटर्न भी हो गई like this. Okay, so both the line intersecting on this point. Okay, so जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है यहीं पर इमेज का ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा. ओके, सो यहाँ बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट इमेज. सो ये हो जाएगी इमेज. सो ये हो गया टॉप. अब टॉप है तो हमने इसको नाम दे दी ए डैश और इसको दे दिया हमने बी डैश. अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने? बिटवीन इनफाइनाइट डिस्टेंस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर. और इमेज कहाँ बन रहा है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. सो कंडीशन क्या हो जाएगी? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, और हम लिख सकते हैं केप्ट बिटवीन इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, then image is formed between center of curvature and principal focus. Okay, so this is the position of image. now देखो इमेज यहाँ पर इरेक्ट है बट यहाँ पर इमेज कैसे बन रही है? इनवर्ट. सो दैट इज द नेचर ऑफ इमेज. सो हम यहाँ पर लिखेंगे एंड इमेज फॉर्म्ड. एंड इमेज फॉर्म कैसी है? इनवर्ट. इनवर्ट मीन्स उल्टी. सो हम लिखेंगे इनवर्ट. एंड इफ वी विल प्लेस स्क्रीन, यहाँ पर अगर हमने स्क्रीन को प्लेस किया सो इमेज कहाँ बनेगा? ऑन द स्क्रीन. दैट मीन्स दिस इमेज को हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं ऑन अ स्क्रीन. अब ऐसी सारी के सारी इमेज जिसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं ऑन स्क्रीन, ऐसी इमेजेस को हम बोलते हैं रियल इमेज. ओके, सो द इमेज इज फॉर्म्ड विच इज इनवर्ट. कॉमन देंगे, हम लिखेंगे रियल इमेज एंड ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है उससे जो इमेज है कैसी? छोटी है, छोटी इन साइज में छोटी है. दैट मीन्स हम उसको लिखेंगे इट इज डिमिनाइज्ड. एंड डिमिनाइज्ड का मतलब जो इमेज है ऑब्जेक्ट से क्या होगी? छोटी होगी. ओके, सो दिस आर द टू पोजीशन के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रखा एंड इसके अकॉर्डिंगली इमेज बन रहा है. अब देखो पहले वाले इमेज में अगर हम देखेंगे सो इन फर्स्ट इमेज क्या हो रहा है? यहाँ पर अब जो साइज ऑफ द इमेज है कैसा है? पॉइंट इमेज. तो हम यहाँ पर और लिख सकते हैं द इमेज इज वेरी डिमिनाइज्ड. बहुत ज़्यादा छोटी है. वेरी डिमिनाइज्ड दैट इज पॉइंट इमेज. ओके, so these are the two conditions where we will kept our object and image will form at different position. Okay, now we will check the third position of object.
Now third condition or third position of object. So when object is placed at center of curvature, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, देन वेयर द इमेज विल फॉर्म, हम ये चेक करेंगे. ओके, सो अगेन वी हैव टू ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस. So when object is kept at center of curvature, okay, this is the focus, this is center of curvature, this is the pole, and this is A, B is our object. So one light ray is incident on mirror through parallel to principal axis, and after reflection will passes from the focus. Okay, so this is the reflected light ray. Another light ray which is incident on mirror through focus, so after reflection will passes parallel to principal axis on this direction. So both the light rays incident at this point. Okay, so at this point the image will form. So हम देख रहे हैं इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, बट बिलो द एक्सिस. ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, सो आंसर विल बी व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at center of curvature, then the image will form at center of curvature itself or only. Just below, it is just below the object. ओके, एंड सी यहाँ पर अगर हम बात करें साइज ऑफ द इमेज विच इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सो वी कैन से द साइज ऑफ इमेज इज एज सेम एज साइज ऑफ object. Okay, so this is position. If we will keep the screen here, अगर हमने यहाँ पर स्क्रीन को रखा, that means हम जो इमेज है उसको स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं. that means द इमेज कैसी होगी, रियल होगी. एंड इमेज इज रियल, एंड कैसी है, उल्टी है, that is A डैश यहाँ आ जाएगा और B डैश यहाँ. सो इमेज कैसी है, इनवर्ट है, virtual and invert. Okay, so this is all about image formed by the concave mirror when object is placed at center of curvature. Okay, so this is the third condition where we can put our object. Okay, so now we will check the next position of object in front of concave mirror. सो अब नेक्स्ट कंडीशन कहाँ हो जाएगी, अभी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, अब हम प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. ओके, सो फोर्थ कंडीशन. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर. सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो दिस इज द पोल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस that is focus, and this one is center of curvature, and object is placed between center of curvature and focus over here. Okay, so we will draw one line parallel to principal axis. So after reflection this light ray will passes through the focus according to our first rule. Okay, so light rays यहाँ इंसिडेंट हुई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास कहाँ से हो गई, थ्रू फोकस. So this is the direction of light ray. Okay, now next light ray we will draw through focus on principal axis. So after reflection this light ray will passes parallel to principal axis like this. Okay, so ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, on this point. That means object कहाँ फॉर्म होगा, at this point only. Okay, so this is the ray diagram. Suppose this is the A and B, so here will be B dash and A dash.
ओके, सो नाउ रिजल्ट आंसर लिखना है इनका, तो क्या हो जाएगा आंसर? सो व्हेन object is placed or kept between center of curvature and focus, then image is formed between, कहाँ बन रहा है? between center of curvature and infinite distance, center of curvature and infinite distance. okay, and image कैसी है? invert है, so we have to write the nature of image also, and the image is, see object छोटा है, image बड़ी है, that means image कैसी है? मैग्नीफाइड है, so image is magnified, एंड रियल है क्योंकि हम यहाँ पर स्क्रीन रखेंगे तो स्क्रीन पे हम इमेज को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स एंड रियल इमेज, रियल एंड, और कैसी है? इन्वर्ट है, कैसी है? इन्वर्ट है. सो दिस इज ऑल अबाउट इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. सो नेक्स्ट कंडीशन हम कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को? एट फोकस. ओके, सो नेक्स्ट कंडीशन हो जाएगी एट फोकस. सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस. सो इमेज कहाँ फॉर्म होगा वो देख लेते हैं. ओके, सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉन्केव मिरर, दिस इज पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हमने? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस. सो फोकस के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट केप कर दिया. अब इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा हम वो चेक कर लेते हैं. सो अगेन वी हैव टू ड्रॉ वन लाइन और लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सो हियर आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस लाइट रे विल पास थ्रू फोकस इटसेल्फ. सो ये फोकस से होते हुए लाइट रेस पास थ्रू हो गई. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, and one light ray we will draw from center of curvature. okay, so next light ray हमने draw कर लिया from center of curvature. जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेम पाथ से रिटर्न भी हो जाएगी. सो यहाँ से लाइट रे गई एंड सेम पाथ से रिटर्न भी हो गई. सो सी ये लाइट रेज कैसी बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है, एंड दैट्स वाई वी हैव टू कंसिडर दिस लाइट रे इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. हमने कंसिडर कर लेते हैं कि जो लाइट रेज पैरेलल है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी. एट दैट पोजीशन इमेज क्या होगा? फॉर्म होगा. ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? सो इमेज का बनेगा एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे. ओके, सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस then image is formed at infinite distance. and image कैसे होगा? very magnifying, and image is very magnified. फिर कैसे होगी? रियल होगी, एंड बिलो द एक्सिस बन रही है, दैट मीन्स कैसी होगी? इनवर्ट. ओके, सो दिस इज द रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस. ओके, सो दिस इज द फिफ्थ वन. नाउ वी हैव द लास्ट कंडीशन वेयर इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड, अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में कैप करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट सिक्स्थ एंड लास्ट कंडीशन, लास्ट है बट नॉट द लीस्ट. सो क्या हो जाएगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल.
फोकस एंड पोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट को कैप्ट करेंगे. देन वी विल सी वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड. ओके, सो लेट्स ड्रॉ द रे डायग्राम. So this is the principal axis, this is the concave mirror, pole, focus and center of curvature, and this is our object. So we have kept our object between pole and focus. So again we have to draw one light ray parallel to principal axis, that means from here, and after reflection this light ray will passes through focus. This is focus, this is not the focus, so this is the wrong. So from here light ray will passes through focus. This one is incorrect. Okay, so this is the direction of light ray, and one more light ray will passes through the center of curvature. So from here, okay, light ray यहाँ पे गई, यहाँ इंसिडेंट हुई and return back होगी with the same path. Okay, if we will draw this light ray on back side of the mirror like this, okay, so they will intersect at here. अब यहाँ पर intersect कर रहे हैं, that means we will, हमको ऐसा feel होगा कि image कहाँ है, behind the mirror है. Okay, so image is formed over here. Okay, so see, this is the image which is formed behind the mirror. That means ये जो image होगा वो कैसा होगा, virtual होगा. Suppose this is A and point B, so this will be A and A dash and this one will be B dash. So image कैसा बन रहा है, erect बन रहा है. Erect means सीधा. Okay, so आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर will be when object is placed between object is placed between focus and pole, then image is formed behind the mirror. Okay, which is साइज में बड़ा है, that is magnified, comma सीधा है, that is erect, and behind the mirror हम यहाँ पर स्क्रीन प्रोजेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज लाइट रे यहाँ से आते हुए फील हो रही है, बट रियल में आ रही क्या, नो, दैट मीन्स दिस इमेज इज वर्चुअल इमेज. ये जस्ट फील हो रहा है कि ये इमेज कहाँ है, बिहाइंड द मिरर है. ओके, सो इट इज इरेक्ट एंड वर्चुअल. ओके, सो वर्चुअल इमेज क्या होंगी, दोज इमेजेस दे कैन नॉट बी फोकस्ड ऑन स्क्रीन, सच इमेजेस आर कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज. दिस लाइन इज रॉन्ग. ओके, अदर इसको रॉन्ग है, ये दो लाइन जो है वो करेक्ट है. ओके, सो दिस इज द 6th position where we can place our object. Okay, so this is all about the ray diagram formed or ray diagram for the concave mirror. Okay, so in next video we will see the image formed by convex mirror where object is kept in front of the mirror. Okay, so bye for now, आज के लिए इतना ही. and you have to draw this ray diagram once twice, जब तक आपको नहीं आती you have to draw ray diagram. Okay, because as point of view as your exam, this light rays diagram are very important, this ray diagrams are very important. Okay, so bye for now.